Good morning, children. Let's start with today's class. And the topic which we will be starting today, the topic which I will be discussing with you people today is an entirely different topic. It is a new topic. And let's start with it. So let me introduce first what the topic is. The topic is care of the unconscious clients. Okay, how to take care of a patient who is unconscious. So that's the topic for today. And let me also tell you one thing, that the care which has to be provided to a person who is conscious is very different from that of the care which has to be provided to an unconscious client. क्योंकि जब भी क्लाइंट अनकॉन्शियस है उसको ज्यादा आपको केयर करना पड़ेगा, ज्यादा वो पेशेंट डिपेंडेंट होगा आपके ऊपर. ठीक है. सो that is for that same client, for that same unconscious client, we will be studying today that what care has to be provided. Fine. So first of all, before starting the topic, I would like to tell you that what is consciousness and what is unconsciousness. How will you know that a patient is conscious and how will you know that the patient is unconscious? Fine. So first of all, consciousness is when can we say that a person is conscious? कब हम कह सकते हैं कि एक इंसान conscious है? A person is said to be conscious when he or she is in a state of complete wakefulness. When the person is completely wakeful, when the person is entirely aware of himself, of his environment, of his surroundings, then of the time as well, then that is known as being conscious. When I know, जब मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, ये जगह क्या है, क्या समय हो रहा है, दिन हो रही है, रात हो रही है. ठीक है. जब मुझे पता है मेरे सामने जो खड़ा है ये कौन है. ठीक है. अगर मेरे रिलेटिव्स मेरे पास हैं तो मुझे पता है. When I am oriented with time, place, person, myself, my environment, place itself. Environment मतलब वही place हो गया. So that kind of a person is known as a conscious person. Now what is unconsciousness? Unconsciousness means when a person is not aware of himself, when he is not aware of his environment, when he is not aware of the people, the place. So that is the state of being unconscious. Consciousness का सीधा उल्टा हमारा जो हो गया, that is being unconscious. ठीक है. अब ये जो हमारा unconsciousness है, ये कुछ घंटों से लेकर के कुछ काफी घंटों तक भी, एक घंटे से लेके कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक भी हो सकती है, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिनों तक भी हो सकती है. ठीक है. सो लाइक दैट अनकॉन्शियसनेस बेसिकली स्टेज. एंड अब अनकॉन्शियस हमारा किस किस वजह से हो सकता है? अनकॉन्शियसनेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर. अगर किसी को किसी तरीके की बीमारी है, ऐसी बीमारी जो कि इंटरप्ट कर रही है विद द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, RAS है. अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर हो गया है किसी को जो उसके RAS को इम्पेयर कर रहा है, सो दैट कैन लीड टू unconsciousness. That can be any hemorrhagic condition, that can be due to any road traffic accident, that can be due to meningitis. ठीक है. So there are various other conditions जिसमें कि हमारा जो ये reticular activating system है that can get damaged, और ये RAS के डैमेज होने की वजह से unconsciousness फिर हमारा फर्दर हो सकता है. ठीक है. या फिर अगर ब्रेन को किसी तरीके का कोई डैमेज हो जाए, कोई डिप्रेशन, if any kind of depression happens because of any kind of trauma की वजह से अगर ब्रेन में किसी तरीके का डिप्रेशन हो जाए, या फिर किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन का जो मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, या फिर हमारा जो इंटायर जो ब्रेन है, इफ दैट गेट्स डैमेज्ड, सो दैट कैन लीड टू अनकॉन्शियसनेस. ओके. सो या फिर अगर हमारा ब्रेन डिप्रेस हो जाए बिकॉज ऑफ एनी एक्शन ऑफ अ ड्रग, सो दैट कैन ऑल्सो. जैसे कि अल्कोहल लेने से क्या होता है, हमारा CNS डिप्रेस हो जाता है. वैसे हमारे कुछ ड्रग्स होते हैं जिसमें कि अगर उन ड्रग्स की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपका जो इंटायर ब्रेन होगा दैट कैन बी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स. सो दैट कैन अगेन लीड टू द unconscious stage. Fine. So next I'll be telling you, I hope this much was clear about consciousness and unconsciousness. Next मैं आपको अब बताऊंगी कि what is coma. ठीक है. कोमा आपने सुना होगा, टीवी में सुना होगा, कुछ नहीं तो, कि what is coma. So now what coma is?
सो कोमा का क्या मतलब है? कोमा इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेज। एक कोमा को एक ऐसी स्टेट बोलते हैं जिसमें कि द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लाइंट गेट्स इम्पेयर्ड, द क्लाइंट विल बी अनकॉन्शियस, द क्लाइंट विल ऑल्सो नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू एनी वर्बल स्टिमुलाई एंड डू नो वॉलंटरी मूवमेंट। एक ऐसा स्टेट जब जो पेशेंट है हमारा वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा। So coma mainly is a state when the client is unconscious, when the client is not responding to the stimuli, client conscious नहीं है, stimuli को verbal कोई response नहीं कर रहा, stimuli को response नहीं कर रहा, कोई voluntary movement नहीं कर रहा अपनी body में, blink नहीं कर रहा, जैसे हम eyes को blink करते हैं वैसे ये blink भी नहीं कर पा रहा है। Also the patient will have altered respiratory patterns, pupillary response will be altered, okay? एंड अगर हम पेशेंट को पेन भी दे रहे हैं तो पेन को भी द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर हमें कोई पेन देता है तो हम क्या करते हैं? वील बी विड्रॉइंग आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दैट पेन, बट अ कोमा पेशेंट विल नेवर बी रिस्पॉन्डिंग टू पेन एज वेल। ठीक है, सो दैट इज अ कंडीशन व्हेन कोमा कैन बी डायग्नोज्ड दैट या ओके दिस पर्सन हैज कोमा। द पर्सन विल बी unresponsive, the person will be unconscious, the person will not be responding to pain, will not be responding to any kind of verbal stimuli, अगर blink भी नहीं कर रहा होगा, voluntarily कोई movement नहीं होगा body में। So all these conditions when summed up can be known as coma. Fine. Now I'll be telling you about the levels of consciousness. लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस भी हमारे कुछ लेवल्स में होती है। फाइन, लेवल्स में होती है का क्या मतलब है? जैसे पेशेंट कभी कभी क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियसनेस पेशेंट में है बट पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी क्या होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे कुछ लेवल्स में अनकॉन्शियसनेस को भी डिस्क्राइब किया गया है। क्या क्या है वो लेवल्स? द फर्स्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज अलर्टनेस ओरिएंटेड। अलर्टनेस कॉमा ओरिएंटेड, पहला लेवल हमारा जो है उसमें पेशेंट क्या रहेगा? अलर्टनेस भी रहेगी और ओरिएंटेशन भी रहेगा, पेशेंट ओरिएंटेड रहेगा एक्चुअली। इस स्टेट में क्या होगा? पर्सन का रिस्पॉन्स, द पर्सन ओपन्स आईज स्पॉन्टेनियसली, अपनी आंखों को वो स्पॉन्टेनियसली खोलता है। बेटा सी लिसन वेरी केयरफुली वॉट एवर आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। आज हम जो टॉपिक डील करने हैं दैट कैन बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न, थोड़ा सा मुश्किल होगी लर्न करने में, पर ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आज के टॉपिक में। फाइन, सो अलर्टनेस एंड ओरिएंटेड में क्या होगा? पहला हमारा ये जो लेवल है अलर्टनेस कॉमा ओरिएंटेड। इस स्टेट में क्या होता है? द क्लाइंट विल बी और द पेशेंट विल बी ओपनिंग हिज आईज स्पॉन्टेनियसली। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइज विच इज कमिंग फ्रॉम माई बैकग्राउंड। ओके, सो द पर्सन विल बी ओपनिंग हिज आईज स्पॉन्टेनियसली। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जब मन करता है हम अपनी आंख खोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें कोई सिर्फ बाकी टाइम हमारी आंखें बंद है, जब कोई आवाज देगा तब हम अपनी आंख खोल रहे हैं। नहीं, हम जब चाहे अपनी आंखें खोलते हैं। तो दैट इज ओपनिंग द आईज स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का यही मतलब है। तो इसमें पेशेंट अपनी आंखें जब चाहे स्पॉन्टेनियसली खोल सकता है। एंड ऑल्सो द पर्सन विल बी रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। जो भी स्टिमुलाई पेशेंट को, स्टिमुलाई का क्या मतलब है? अगर बाहर से हमें कोई फोर्स ऑफ एक्शन मिलता है, तो बाहर से अगर जैसे कि अगर बहुत लाइट पड़ी तो लाइट हमारा क्या है? स्टिमुलस है। या फिर कोई हमें आवाज दे रहा है तो वो क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, सो वेन एवर अ पेशेंट इज गेटिंग एनी स्टिमुलाई द पेशेंट इज रिस्पॉन्डिंग परफेक्टली टू इट, ही इज रिस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएटली टू इट एक्चुअली। ठीक है, ये दिस लेवल इज नोन एज अलर्टनेस एंड ओरिएंटेड। नेक्स्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज लेथार्जी एंड स्लीपी। लेथार्जी एंड स्लीपी में क्या होगा कि पेशेंट विल बी हियर स्लो टू रिस्पॉन्ड बट विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। कोई भी स्टिमुलाई पेशेंट को अगर दिया तो पेशेंट रिस्पॉन्ड धीरे करेगा। जैसे पेशेंट को आपने आवाज दी, हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्ड करे, पर वो रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली करेगा। जब पेशेंट को कोई स्टिमुलाई मिलेगी तभी पेशेंट आंख खोलेगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, आई रिस्पॉन्स विल बी टू द स्टिमुलाई। ऊपर वाले में क्या हमने पढ़ा था अलर्टनेस में कि पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आंख खोलेगा, बट लेथार्जी और स्लीपी में क्या है कि पेशेंट को जब बाहर से कोई स्टिमुलाई मिलेगा तभी पेशेंट आंख खोलेगा। जब आप उसको आवाज दोगे तब वो आंख खोलेगा, या जब आपने पेशेंट को टच किया और बुलाया
तब पेशेंट आंख खोलेगा। या अगर आप पेशेंट के पास गए उसको इंजेक्शन देने, बाकी टाइम उसकी आंख बंद थी, उस टाइम पे उसने आंख खोली, ठीक है। सो टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलाई ओनली द पर्सन विल बी ओपनिंग द आईज एंड द पर्सन विल ऑल्सो बी ओरिएंटेड। पेशेंट को पता रहेगा कि वो हॉस्पिटल में है इस टाइम पे, ठीक है। आप उसको दवा देने गए हो, आप नर्स हो, पेशेंट विल बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है। द नेक्स्ट लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज स्टूपर। स्टूपर लेवल हमारा क्या होता है, इसमें द पर्सन्स रिस्पॉन्स विल बी अराउज्ड बाय एनी पेनफुल स्टिमुलस। पेशेंट के रिस्पॉन्स जो है वो किसी पेनफुल स्टिमुलस के लिए ही आएगा। फाइन। जब पेशेंट को आप पेन दोगे तभी पेशेंट कुछ रिस्पॉन्स करेगा या तभी पेशेंट अपनी आंखें खोलेगा, ठीक है। ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली देयर विल बी नो रिस्पॉन्स। पेशेंट कभी भी फुल्ली अवेक नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट कभी भी फुल्ली अवेक नहीं होगा स्टूपर स्टेज में। पेशेंट हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा, अनक्लियर कॉन्वर्जेशन रहेगी। आप पेशेंट से पेशेंट का नाम पूछोगे तो वो आपको कुछ बताने की कोशिश करेगा बट क्लियर नहीं रहेगा। सो द पेशेंट्स कॉन्वर्जेशन विल ऑल्सो बी अनक्लियर। क्या क्या है स्टूपर में, अराउजल विल ओनली बी देयर व्हेन अ पेनफुल स्टिमुलस इज गिवन। पेन को ही सिर्फ पेशेंट, पेन की वजह से ही पेशेंट का अराउजल होगा। देन पेशेंट आंख भी अपनी सिर्फ पेनफुल स्टिमुलस पे ही खोलेगा। पेशेंट कभी भी फुल्ली अवेक नहीं रहेगा। पेशेंट हमेशा कंफ्यूज्ड रहेगा। पेशेंट की कॉन्वर्जेशन जो रहेगी दैट विल ऑल्सो बी अनक्लियर, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द स्टूपर स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज योर सेमी कोमा स्टेज। सेमी कोमा स्टेज हमारी क्या है, सेमी कोमा स्टेज में द मूवमेंट विल ओनली बी देयर। So in the semi-coma stage, what happens? Movements will be there, but only the movement will be there to the painful stimuli. अगर आपने पेशेंट को चुटकी काटी तो पेशेंट हो सकता है कोशिश करे कि आपका हाथ वहां से हटाने की कोशिश करे, ओके। सो द मूवमेंट विल बी देयर बट इट विल ओनली बी देयर ऑन गिविंग अ पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है। तो मूवमेंट रहेगा पेनफुल स्टिमुलाई पे, ये पहला पॉइंट हो गया सेमी कोमा स्टेज में। सेकेंड इज देयर विल बी नो कॉन्वर्जेशन, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होगा पेशेंट की तरफ से। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग विल नॉट बी देयर, ठीक है। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग और swallowing विल बी देयर। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग विल बी देयर, swallowing विल बी देयर, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको वापस से बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी कोमा स्टेज में मूवमेंट रहेगा पेशेंट का, लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलस मिलेगा। सेकेंड इज देयर विल बी नो कॉन्वर्जेशन, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करेगा पेशेंट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग विल बी देयर। प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग मतलब अगर आपने पेशेंट को पेशेंट की अगर आंख में पेशेंट को लगा कुछ जा रहा है तो पेशेंट प्रोटेक्टिवली ब्लिंक करेगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा लाइट जा रही है तो पेशेंट ब्लिंक करेगा, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग विल बी देयर, हमेशा ब्लिंक नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि पेशेंट की आंख में आपने अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स को चेक किया, और अभी कॉर्नियल रिफ्लेक्स क्या है मैं आगे जाके बताऊंगी। पेशेंट की आंख में अगर आप क्लीन क्लॉथ से अगर कॉर्निया पे पेशेंट के हल्का सा टच करोगे तो पेशेंट आंख बंद करेगा, ठीक है। दैट इज अ टेस्ट। तो उसमें पेशेंट प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग को शो कर रहा है कि प्रोटेक्टिव ब्लिंकिंग होगा। देन swallowing विल बी ऑल्सो प्रेजेंट, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट होगा। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या होता है, आपकी प्यूपिल जो है, आंख में हमारे प्यूपिल होता है, राइट। सो प्यूपिल हमारा क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट करता है डिपेंडिंग अपॉन के प्यूपिल्स में हमारी अगर बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, आंखों को एकोमोडेट करने के लिए, उतनी लाइट को एकोमोडेट करने के लिए प्यूपिल्स हमारे क्या होंगे, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो प्यूपिल्स कीप ऑन कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंड डायलेटिंग, दैट यू विल बी स्टडिंग फर्दर, ठीक है। सो प्यूपिल्स हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, प्यूपिल्स हमारे डायलेट करते हैं। सो दैट ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में दैट हैपेंस। सो इन दैट पेशेंट ऑल्सो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स विल बी देयर, ठीक है। सो these kind of things will be present in the semi coma stage patient. Next level of unconsciousness is your coma. कोमा में क्या होगा, कोमा में द पेशेंट विल बी अनरिस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट को आप सीवियर पेन भी दोगे तब भी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव रहेगा। पेशेंट को आप कितना भी चुटकी काटो, पेशेंट को आप कितना भी पेन दे रहे हो बाहर से, पेशेंट विल बी अनरिस्पॉन्सिव, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। कोई किसी तरीके का कोई प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। पेशेंट ना आंखों को ब्लिंक करेगा, कुछ आंखों में अगर पेशेंट के आप चेक भी करोगे, कॉर्नियल टेस्ट भी करोगे तो उसमें भी पेशेंट आंखों को अपनी ब्लिंक नहीं करेगा। एंड ऑल्सो द प्यूपिल्स विल बी फिक्स्ड, प्यूपिल्स जो है आंखों में वो फिक्स्ड रहेंगी। आप एक नॉर्मल पर्सन का प्यूपिल, फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने पढ़ा होगा प्यूपिलरी रिएक्शन कैसे चेक करते हैं, टॉर्च को पास करवाते हैं आंखों में से तो प्यूपिल्स का डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन को हम देख सकते हैं, फाइन। बट यहाँ पे क्या होगा,
जो पेशेंट हमारा कोमा स्टेज में है उसके जो प्यूपिल्स होंगे वो एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे। आप टॉर्च से लाइट उसमें पास करोगे तब भी कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। प्यूपिल्स एक जगह पे फिक्स्ड रहेंगे। देन किसी भी तरीके का वॉलंटरी मूवमेंट विल नॉट बी देयर। ऑब्वियसली अगर प्रोटेक्टिव मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वॉलंटरी मूवमेंट ऑब्वियसली विल नॉट बी देयर, ठीक है। कि अगर पेशेंट चाहे अपना हाथ हिला ले वो नहीं करेगा, कोई किसी भी तरीके का कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट विल नॉट बी देयर। These things will be present in a patient who is suffering from coma or who is in the coma state. Okay, not suffering from, who is in coma state. ये हमारे थे लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। पहला हमारा लेवल क्या था? अलर्टनेस, ओरिएंटेड। सेकेंड हमारा था लेथार्जी, स्लीपी। थर्ड हमारा था स्टूपर। नेक्स्ट वॉज सेमी कोमा स्टेट, देन इट वॉज कोमा स्टेज, ठीक है। सो दीज वर 5 levels or stages of you can say unconsciousness. Okay, then now the next is assessment of coma or not the coma, assessment of an unconscious client. अगर unconscious client है तो उसके लिए क्या assessment हमें करना है? First of all जो भी केयर नर्स प्रोवाइड कर रही है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द नर्स हैज टू कीप ऑन असेसिंग द पेशेंट। पेशेंट को देखते रहना है, पेशेंट को इवैल्यूएट करना है, पेशेंट की कंडीशन को इवैल्यूएट करना है। केयर जो नर्स प्रोवाइड कर रही है वो कितनी इफेक्टिव है कोमा पेशेंट के लिए, उसको इवैल्यूएट करना है। कैसे इवैल्यूएट कर सकती है नर्स? कोमा अगर पेशेंट को हो गया है तो कुछ फर्स्ट फ्यू आवर्स में क्या करना है नर्स को? एक कोमा पेशेंट के लिए इनिशियल आवर्स में नर्स को क्या करना है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कंडक्ट करना है। हर 15 मिनट पे पेशेंट का, जैसे हम क्या करते हैं वाइटल साइंस चेक करते हैं पेशेंट का, वैसे ही एक हमारा असेसमेंट है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। सो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में मेनली द ग्लासगो कोमा स्केल इज यूज्ड। जीसीएस को हम यूज करते हैं। अभी जीसीएस क्या है मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। सो जीसीएस को मेनली यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिस को चेक करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डन। सो यहाँ पे हमें यही करना है, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करना है हर 15 मिनट में, ठीक है। देन कोमाटोज पेशेंट्स हमारे क्योंकि जो होते हैं उनमें समटाइम्स मूवमेंट भी एब्सेंट रहेगा, रिस्पॉन्स भी बहुत वेग रिस्पॉन्स रहेगा, उनका अनक्लियर सा रिस्पॉन्स रहेगा। सो इसके लिए हमें जो हमारा जो इंटरवेंशंस है वो बहुत ज्यादा इंटरवेंशंस को हमें परफॉर्म करना पड़ सकता है पेशेंट के लिए। बहुत ज्यादा हमें विजिलेंट रहना पड़ सकता है पेशेंट के लिए। बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ सकता है पेशेंट का। वाई? बिकॉज पेशेंट इज नॉट on his own, the patient is not conscious enough, the patient is not able to do activities for himself, so the nurse will be doing all that for the patient. Okay, and also the nurse has to, जो भी वो interventions कर रही है patient के लिए, the vigorous interventions, aggressive interventions, not the vigorous, some aggressive interventions may be sometimes required to be performed for the patient. So nurse को वो सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं. So she has to be very careful while she is dealing with the patient who is unconscious. उसके सारी needs का ख्याल रखना है, उसके सारे जो basically जो daily needs हैं that has to be performed by the nurse as well, क्योंकि patient वो खुद से अपने लिए perform नहीं कर पाएगा. Fine, so that will be taken care. Then next is अभी क्या क्या करना है उस असेसमेंट के लिए पेशेंट के क्या क्या करना है. द वेरी फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन. हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करना है? द नर्स हैज टू कलेक्ट डेटा अबाउट द पेशेंट्स प्रेजेंट इलनेस, अबाउट द पेशेंट्स पास्ट इलनेस, अबाउट एनी पास्ट सर्जरीज. ठीक है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पता करना है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को पता करना है, इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है पर्सन का ये पता करना है. ठीक है, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री पता करनी है. ये सारी चीजें नर्स को, इन सारी चीजों के बारे में हिस्ट्री हैज टू बी कलेक्टेड. ठीक है, मेंटल स्टेटस के बारे में पेशेंट के पता करना है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को कोमा हो गया है तो हिस्ट्री ऑल्सो समटाइम्स विल हेल्प टू नो दैट वाई इज दिस पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज. कई बार कई न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द एल्कोहलिज्म या ड्रग, कोई अगर ड्रग ओवर यूज कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है. तो हिस्ट्री में हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि कहीं पेशेंट को पास्ट में कोई ऐसी इलनेस तो नहीं थी जिसकी वजह से वो कोई मेडिसिन ले रहा था जिसका साइड इफेक्ट हुआ ये, या फिर जिसका एडवर्स इफेक्ट हो गया ब्रेन के ऊपर. ठीक है, सो ऑल दैट हिस्ट्री हैज टू बी कलेक्टेड. बेटा आज मैं काफी मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आई एम कवरिंग इन हिंदी बिकॉज द टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट.
और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप कवर नहीं कर पाओगे। और बिकॉज आप लोगों ने खुद ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज आप हिंदी में भी एक्सप्लेन किया करिए, हमारे समझ में नहीं आता, तो आज मैं मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन हिंदी में कवर कर रही हूँ ताकि यू पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, सो या हिस्ट्री कलेक्शन में ये चीज है हमारा, ये चीज कर सकती है नर्स। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन आपने पहले से पढ़ा हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन में द वेरी फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का सबसे पहले हम कॉन्शियसनेस देखेंगे, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, लेथार्जी या फिर हमारा स्लीपी स्टेज में है, अलर्टनेस या फिर हमारा ओरिएंटेड है। जो लेवल्स बताए मैंने आपको अनकॉन्शियसनेस के, उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए द वेरी वाइटल थिंग विच इज यूज्ड इज योर ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए एक जैसे कि कुछ स्केल्स बने हुए हैं, जैसे हमारा ब्रैडन स्केल्स है, पेन स्केल है, वैसे ही हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल है। ग्लासगो कोमा स्केल, GLASGOW, ग्लासगो कोमा, COMA कोमा, देन स्केल, SCALE, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल को हम यूज करते हैं टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पर्सन। इसमें मेनली हम चेक करते हैं फॉर द आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड द मोटर रिस्पॉन्स ऑफ द पर्सन। ठीक है, कि पेशेंट का हमारा आई रिस्पॉन्स मतलब आई ओपनिंग को चेक करते हैं कि कब कब हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, तो आई रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। देन वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, जो पेशेंट बात कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है वर्बली या नहीं, सो वर्बल रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। देन मोटर रिस्पॉन्स, मोटर मतलब वो घर वाली मोटर नहीं, मोटर मतलब मूवमेंट वाला मोटर, कि अगर पेशेंट को आपने पिंच किया तो क्या पेशेंट हाथ उठा रहा है, अगर पेशेंट से आपने कहा अपना हाथ ऊपर उठाइए तो क्या पेशेंट खुद से अपना हाथ ऊपर उठा रहा है। ठीक है, सो दैट इज द मोटर रिस्पॉन्स। फाइन, सो ग्लासगो कोमा स्केल आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस ग्लासगो कोमा स्केल। ये मेरे ख्याल से आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल ऐसे समझ लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, देन मैं इसका एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। पिक्चर आई ऑलरेडी हैव विद माई सेल्फ। मैंने सोचा था कि ये पिक्चर आपको क्लास के बाद शेयर करूंगी, लेकिन अगर क्लास के बाद करूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने एग्जैक्टली बताया क्या। सो इसकी वजह से आई ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड दिस चार्ट फॉर यू पीपल, सो आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, आई फील आई विल बी अटैचिंग अ पिक्चर। ओके, एनीवे wait for a while. Is this visible? ये भी उल्टा ही है मेरे ख्याल से। Okay, wait. I'll be using the chart which I have prepared. Okay? मैं इसके बाद आपको एक पिक्चर इसका दे दूंगी। So very first thing is आई रिस्पॉन्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा आई रिस्पॉन्स सबसे पहला है जो हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट इज योर वर्बल रिस्पॉन्स, नेक्स्ट इज योर मोटर रिस्पॉन्स। फाइन, सो आई रिस्पॉन्स में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा रहेगा आई रिस्पॉन्स में देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सेज विच आर गिवन। हर एक पहले जो जो चीजें हमें एसेस करनी है वो दी हुई हैं, फिर उसके साथ में रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, आई रिस्पॉन्स हम पेशेंट का चेक करेंगे, और ये जो आई रिस्पॉन्स हमारा है ये टोटल होता है 4 स्कोर्स का, 4 नंबर का। आई रिस्पॉन्स टोटल होता है 4 नंबर का, वर्बल रिस्पॉन्स टोटल होता है 5 नंबर का, देन मोटर रिस्पॉन्स टोटल होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, मोटर रिस्पॉन्स हमारा टोटल होता है 6 मार्क्स का। ठीक है, सो आई रिस्पॉन्स में अगर हमने देखा कि पेशेंट का आई ओपनिंग इज स्पॉन्टेनियस, द वेरी फर्स्ट इज spontaneous. तो if the eye response of the person is spontaneous, patient कभी भी आंख खोल रहा है, ठीक है, so that is the marks given will be 4 marks. Okay, the marks given will be 4 marks. And if the eye response of the person is only to speech, अगर आपने पेशेंट को आवाज दी, कुछ बात की, तभी पेशेंट ने आंख खोला, तो हम देंगे उसको 3 मार्क्स। ठीक है, ये सारे नहीं देने हैं बेटा, इसमें से कोई एक देना है। आप देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्या पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को मार्क्स देने हैं। ठीक है, अगर पेशेंट का हमारा जो रिस्पॉन्स है
वो स्पॉन्टेनियस था तो आपने 4 मार्क्स दे दिए। अगर हमारा जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ स्पीच के लिए था तो आपने 3 मार्क्स दे दिए। अगर पेशेंट का जो रिस्पॉन्स था वो पेन के लिए ही सिर्फ हुआ, पेशेंट को आपने कुछ पेन दिया तब पेशेंट ने अपनी आंख खोली, तो आप पेशेंट को देंगे 2 मार्क्स। ठीक है। अगर आपने पेशेंट को आवाज भी दिया, पेन भी दिया, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो आप पेशेंट को दोगे 1 मार्क फॉर दैट। ओके, सो 1 मार्क विल बी गिवन। तो इस तरीके से टोटल हमारे ये 4 मार्क्स का हो गया। देन वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में भी हमारे यही है, अगर पेशेंट आपने पेशेंट से कुछ पूछा, आप अभी आप यहाँ पे अभी आप कहाँ पर हो, तो पेशेंट ने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, या फिर आपका नाम क्या है, पेशेंट ने अपना नाम बता दिया। ठीक है। तो देन यू विल बी गिविंग 5 मार्क्स टू द पर्सन, और सॉरी टू द पेशेंट। There is some problem going on in the video. Beta, it's fine. I'll be continuing with the class tomorrow. Whatever is remaining, I'll be starting from the GCS itself, because today I think it is causing some trouble. Okay. So today, yeah, I'm ending this session here. The video is not getting recorded properly. It's getting pause in between, or I don't know what. The light is continuously switching off. लाइट इसकी बार बुझ जा रही है। आई होप द वीडियो इज नॉट गेटिंग प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ठीक है। तो इसके आगे आज जो आपने सेशन ये अटेम्प्ट किया, आज का सेशन बस इतने पे ही मैं बंद कर रही हूँ। द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग टुमारो। फाइन। सो या आप फिलहाल इतना याद कर लेना, सी अगेन इट्स हैपनिंग। ओके, चलो आई विल बी टेकिंग द फर्दर क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू क्लास।